तो मेरी स्कूलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक नॉर्मल स्कूल में रहना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। कहीं न कहीं मेरे को किसी के भी लाइफ़ को देखो तो मेरे को एक चीज़ लगती थी कि नहीं, ये तो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ। So you used to walk through your knees, Yes. not taking the wheelchair. नो, लाइक बात करने से डरती थी, हेल्प मांगने से डरती थी, तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मेरे लिए ट्रैवलिंग नहीं बनी है, मेरे लिए कहीं बाहर निकलना नहीं बना है, मेरे लिए ठीक दिखना नहीं बना है। मतलब वो मेरे लिए थोड़ा एक टफ मोमेंट था कि मैंने बहुत ट्राई किया बट चीज़ें हुई नहीं। बट ऑलवेज अ प्लान बी। कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्लान बी भी सक्सेसफुल हो। तो एक होप जरूर रहनी चाहिए कि ऊपर वाले का भी एक प्लान भी होता है। गेट से काफी पीएसयूज एफिलेटेड होते हैं, उनके इंटरव्यूज के कॉल आते हैं। मैं एक अकेली फीमेल कैंडिडेट और व्हील चेयर पे। मेरे को बहुत टाइम लगा ये सोचने में कि लोग मेरे को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लाइक मेरे लेग्स को पहले देख रहे हैं, देन मेरे फेस को देख रहे हैं। वो टाइम तो ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि कैसे चीजें होंगी, क्या है क्या नहीं है। एंड जो आप कह रहे हो ना कि एकदम गिव अप करने वाली पोजीशन पे, कि अब नहीं हो सकता है मेरे से। मैं पेंटिंग करती हूँ, ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने एक टाइटल मतलब मिस इंस्पिरेशनल दीवा 2018 मैंने जीता था। देन मेरे को वो चीज़ें करने का थोड़ा ज़्यादा ना, जिस पे लोग कहते हैं ये नहीं कर पाएगी, एक हफ्ते दीजिए, अगर नहीं कर पाई तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो एक स्टैंडर्ड मेरे लिए सेट हो गया था कि अब मेरे को उससे नीचे नहीं जाना है। इंट्रोवर्ट और डरी हुई सी लड़की गई थी वहां पे, और एक लीडर बाहर आई थी वहां से कि मैंने बीर से पैराग्लाइडिंग की, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। फिर मैंने अंडमान में स्कूबा भी किया हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुश रहो लाइफ में। Hello everyone, welcome to Level Up IS podcast. Today's podcast is not about any exam strategy. It's not about the preparation, not even about UPSC. Today's podcast is about life, which is the greatest exam of all, and how tough it can be. Sometimes we see that when an aspirant or a student prepares for any exam, be it the academic exam or the competitive exam like IIT, JEE, NEET or even UPSC for that matter, जब भी कोई स्टेज क्लियर नहीं होता तो दे फील लाइक इट्स द एंड ऑफ द लाइफ। अगर अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं या फिर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं आए, दे फील सो डिसहार्टेंड, दे फील वेरी एंग्शियस, दे फील वेरी डिसअपॉइंटेड, and they feel like it's the end of their life. Some even end up taking their life. How sad it is. And the students of the age group between 15 to 30, they suffer the most. But let me tell you, people have bigger issues. They face bigger problems in their lives. Yet they are able to do good in their life. They are able to live happily. And one such personality is sitting here today with me. Her name is Jivita Agrihari. She is inspirational, she is fearless. When Jivita was born, she was born with a disability, because of which she could not walk. And today also she's carrying that disability with her. But she's also carrying today the confidence. She's also carrying today the dreams in her eyes. She's living her life happily, despite that disability. Her journey is marked by some extraordinary challenges, but no limitation could define her strong mindset. She has learned how to move ahead in her life with her head held high. She has learned how to silence the critique who have tried to pull her down. She has also learned to move ahead in her life without even thinking कि लोग क्या कहेंगे. She is unstoppable, she is powerful, she is empowering, and yes, she is beautiful. So without wasting much time, let's have Jivita Agrihari on our podcast. Welcome, Jivita. How are you? I'm good, and thank you for inviting me here. No, it's our pleasure. It's our privilege to have you today with us on this podcast. You agreed to share your journey with us. So, without wasting much time, of course, I would like to start with your journey. Please tell us something about yourself. लाइक मैं एक छोटी से मतलब शहर से बिलोंग करती हूँ। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, खलीलाबाद, नियर टू गोरखपुर। एंड हाँ, मेरी बचपन से थोड़े इश्यूज रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह थोड़ी डिफिकल्ट रही है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक बेस्ट लाइफ जी सकूँ, बेस्ट लाइफ मतलब कर सकूँ। तो मेरी स्कूलिंग हुई, देन आई हैव डन बीटेक फ्रॉम इलाहाबाद, and currently I'm working in a PSU as an manager post. So Okay, so you said that आपकी life में starting से difficulties रही, your schooling had been difficult. So would you like to please share something about the difficulties that you had faced since the beginning, because of the disability? If you're comfortable sharing about that. yeah, like
स्टार्टिंग डेज लाइक जब मैं छोटी थी तो एक था ना कि उस टाइम पे इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, इतना पता नहीं था। अब तो काफ़ी लोग जान गए हैं, काफ़ी लोग फ़ेमिलियर हो गए हैं, बट उस टाइम पे उतना फ़ेमिलियर नहीं थे। उस टाइम पे लाइक एक एक टाइप ऑफ कर्स माना जाता था कि अरे ये हो मतलब इशू हो गया एंड ऊपर से फीमेल एक लड़की के साथ ये इशू होना तो लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। देन स्टार्टिंग में ही एक्चुअल स्ट्रगल तो माँ बाप का होता है, मतलब स्टार्टिंग स्ट्रगल तो माँ बाप का होता है कि उन्होंने क्या किया। एंड देन स्कूलिंग वगैरह में बच्चों को पता नहीं होता, उतनी नॉलेज नहीं होती, तो लाइक होता नहीं है देख कुछ अलग देख करके लोग थोड़ा मजाक बनाते हैं, वो इशू करते हैं एंड उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी स्कूलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक नॉर्मल स्कूल में रहना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। देन वहाँ से मेरे को किसी रीज़न की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी एक होता नहीं है तो मैं मेरी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होना, लाइक बहुत सारी चीज़ों पे नहीं हो पा रही थी चीज़ें। देन एक पहले मैं कॉन्वेंट में थी, एक कॉन्वेंट स्कूल में थी, वहाँ से आई थिंक कुछ इश्यूज़ हो गए तो मेरे को मिड टर्म में हटा दिया गया कि नहीं आप मतलब एक दूसरे स्कूल में आप डालिए इनको, लाइक यहाँ पे बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। देन उसके बाद से मैं मतलब मैंने इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि और कोई स्कूल ऐसा हो नहीं रहा था तो मेरे को हिंदी मीडियम में जाना पड़ा। देन मैंने मेरी स्कूलिंग एक यूपी बोर्ड से हुई, हाई स्कूल एंड इंटर वहाँ से हुआ। देन एक फेज आया कि मेरे को लगा कि नहीं मेरे को कुछ करना है, अब यहाँ रह के सारी चीजें तो नहीं हो सकती, बिकॉज वो इतना छोटा शहर था, मतलब लाइक वहाँ पे कुछ भी आगे बढ़ने का कुछ ऐसा स्कोप नहीं था। देन आई डिसाइड कि नहीं बाहर निकलना होगा, कुछ फेस करने होंगे लाइफ के। तो मतलब आपको स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से उस टाइम पे यू वर फोर्स टू मूव आउट फ्रॉम द यस स्कूल हाँ क्योंकि यस। आप वहाँ पे उनको लग रहा था कि आप कंफर्टेबली हाँ स्टूडेंट्स के जी साथ हाँ नहीं। हाँ। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी सैड टू लिसन बिकॉज एक स्टूडेंट बच्चे के लिए ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपको क्या ही समझा पा रहे होंगे उस टाइम पे कि आपको स्कूल से क्यों निकाला या फिर क्यों जाने के लिए बोल दिया. या एग्जैक्टली So how एक्चुअली। tough this would have been, right? यस So then you started with your graduation, right? यस। So but आप स्टडीज में कैसे थे? स्टडीज में मैं लाइक एक नॉर्मल बच्चा जैसे होता है उसको अगर ट्रेन किया जाता है तो आप अच्छे होते हो पढ़ने में, वो होते हो, बट आई थिंक मेरा एक्चुअल स्ट्रगल मेरा चाइल्डहुड ही है। बिकॉज मेरे को ये बहुत सारी चीजें उस टाइम पे वो आप उतना एक कहते हैं ना ग्रोथ करने वाली एज में आप बहुत सारी चीजों से बाउंड रहते हो कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते हो। फिर आप अगर आपके ऊपर सबकी नजरें रहें, लाइक आप प्रॉब्लम होती है आपको कि आपको क्यों देख रहे हैं, आपको क्या इशू है। देन उस टाइम पे लोगों को अडॉप्ट करना इतना मुश्किल होता था कि चीज़ों को अडॉप्ट करना, कुछ चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी इतनी प्यारी है बट एक इशू हो गया इसको, इतनी अच्छी है तो ये दिक्कत हो गई। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक डिफिकल्ट हो जाता था कि लाइक क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा, क्यों। जैसे कि हर स्टूडेंट हर एस्पिरेंट आई यस वाज जस्ट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला स्टार्टिंग में आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जब कोई किसी का एग्जाम नहीं निकलता है तो हर एस्पिरेंट सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यस व्हाई माय लाइफ इज टफ. तो बट आपकी डिफिकल्टीज के सामने दीज डिफिकल्टीज समवेयर दे आर बिट बिलो द डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड. आपने अपने चाइल्डहुड में जो स्टूडेंट्स रहे होंगे आपके फ्रेंड्स रहे होंगे उनके साथ भी बहुत इंसिडेंट्स ऐसा कभी फेस किया होगा कि what was the issue उस टाइम पर with the एक्चुअली मैं students? अगर सच बोलूं तो उस टाइम पे मैं फ्रेंड्स बना ही नहीं पाई थी। बिकॉज मेरे साथ और भी इश्यूज होते थे, लाइक मैं इतनी डरी रहती थी कि मतलब बहुत सारे मैं मूव जितना भी मैं मूव कर पाती थी वहां भी नहीं मूव कर पाती थी। मैं बहुत ज्यादा डरी रहती थी, स्टक हो गई थी कि एक जगह नहीं, मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को ऐसा बोल दिया जाएगा, वैसा बोल, अगर मैं यहाँ गई तो कैसे चीजें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, क्या होता है ना कि आप लाइफ आपको हर चीज सिखाती है, शायद वो चीज हुआ। देन में एक जैसा कि मैंने बोला अब लोगों के लिए ये होगा कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े आपको, बट वो शायद मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि वहां पे मेरे को वो चीजें मिली जो मेरे को पहले प्रीवियस स्कूल में नहीं मिली। वहां पे मेरे को इक्वल तरीके से देखा गया, एक नॉर्मल बच्चा जैसे होता है, लाइक उसको डांटो
बदमाशी कर रहा है तो डांटो, ये करो। हमें वो ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होती, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होती कि नहीं नहीं ये इसके साथ ऐसा मत करो, उसके साथ वैसा मत करो, बेचारी फील कराओ, या फिर हमें एक मतलब एक होता नहीं है कि जैसे औरों के साथ फील राइट किया राइट। ट्रीट किया जा रहा है वैसे हमें भी ट्रीट करिए। तो वहाँ शायद मेरे को वो ट्रीटमेंट मिली और वहाँ मैंने ग्रोथ किया। और आप जैसा पूछ रहे थे पढ़ाई में आप कैसे थे, वहाँ मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहाँ मैं टॉप 2 टॉप 3 इसमें ही रहती थी। देन वो चीज़ मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया उसने कि हाँ मैं लाइफ में आगे चीज़ें कर सकती हूँ। ऑब्वियसली हडल्स आएंगे, लोगों से कुछ ज़्यादा हडल्स आएंगे, बट चीज़ें हो सकती हैं, ट्राई किया जाए तो चीज़ें हो सकती हैं। तो विद दिस इंसिडेंट आई थिंक जो स्कूल चेंज हुआ आपका, दैट वाज समवेयर अ फर्स्ट चेंजिंग टर्न पॉइंट ऑफ योर लाइफ, आई वुड यस, से. यस। And other than that, talking about the support, who had been the support system? घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? एंड आउटसाइड लाइफ में अब जब बड़े होते जा रहे थे, तो आपका इंस्पिरेशन आउटसाइड एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? देखो सबसे बड़ा सपोर्ट तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स थे। लाइक इनिशियल डेज में आई थिंक उसको मैं अपना स्ट्रगल मानती ही नहीं हूँ, मैं उसको उनका स्ट्रगल मानती हूँ कि उन्होंने मेरे को कैसे लाइक एक सोशली कैसे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, कैसे मेरे को सरवाइव करने के लिए मेरे को तैयार किया, एंड खुद कैसे सरवाइव किया उस बिकॉज वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, आप अकेले होते हो। इवन कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो छोड़ देते हैं कि गिव अप कर देते हैं बच्चों पे, बट मेरे पेरेंट्स ने वो बिल्कुल भी नहीं किया। हर जगह हर एक मोमेंट पे सपोर्ट किया एंड एज अ बैकअप भी रहे हैं। लाइक बेटा तुम ये करो, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, हम हैं। वो एज अ बैकअप भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी और इंस्पिरेशन के लाइक मेरी मम्मा पापा की मैरिज जल्दी हो गई थी, बहुत इनिशियल डेज में हो गई और इनिशियली ही मैं आ गई, तो मेरे साथ साथ उनकी भी एक ग्रोथ मैंने देखी है। लाइक वो कहाँ थे, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ थे, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक इंस्पिरेशन और सपोर्ट तो हमेशा से ही रहे हैं। देन उसके आगे भी चीजें मेरे को ये लगता है ना कि आप जब खुद को ना चांस देते हो या फिर लोगों को प्रूव करने के लिए रेडी रहते हो, तो लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लाइक मेरे कॉलेज में लोग थे, मेरे ऑफिस में लोग हैं, तो वो लोग रेडी रहते हैं सपोर्ट के लिए। मेरे फ्रेंड्स सारे मतलब सबने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए एक और रास्ता दिया। एक्सटर्नल मोटिवेशन आप किस चीज को बोलेंगे, किन को बोलेंगे? आर दे योर फ्रेंड्स और सम अनदर इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी दैट यू वुड वांट टू टॉक अबाउट? एक्चुअली मतलब लाइक हम लोग में मतलब ऐसा तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को किसी की भी लाइफ को देखो तो मेरे को एक चीज कहीं ना कहीं उस टाइम पे लगती थी कि नहीं ये तो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, ठीक है, मैं कैसे इनको बीट कर सकती, इनको कैसे इंस्पिरेशन मान सकती हूँ। तो मेरे लिए क्या था ना कि लाइक कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते थे। लाइक मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्लास 8th में एक बुक, एक मतलब क्लास 8th के सिलेबस में एक चैप्टर था अपराजिता। लाइक वो आज मैं वो स्टोरी अगर पढूं ना तो बिल्कुल मेरे से सिमिलर मिलेगी वो स्टोरी। सेम व्हील चेयर गर्ल, सेम बट शी इज अ डॉक्टर। मतलब उसने डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या किया, उसकी मम्मा ने उसके कितना सपोर्ट किया, क्या सेम। एंड एट दैट टाइम जो मेरे टीचर थे ना, उन्होंने जब वो स्टोरी मेरे से ही पढ़वाई वो स्टोरी, एंड अच्छा। एंड उन्होंने लास्ट में एक वर्ड बोला था, अपराजिता इज इक्वल टू जीविता, हो सकती है। तो वो शायद मेरे लिए एक बहुत एक होता नहीं, किसी ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया था कि हाँ आगे चीजें कर सकते हो आप। वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, एंड इंस्पिरेशन आल्सो। इंस्पिरेशन ऑल्सो। उसके बाद आप कॉलेज गए। कॉलेज में एक बच्चा जो है स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है तो एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपोज होता है यस। उसको, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपोजर आई वुड से। तो वहां पर हाउ वाज इट? जैसे फर्स्ट डे या फर्स्ट फ्यू मंथ्स, हाउ वर दे? मतलब आप तो एक उसकी बात कर रहे हो ना कि एक चेंजेस आते हैं मेरे लाइफ में, वो बहुत बड़ा चेंज था। वो लड़की जो एक चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, बाहर नहीं, उसके लिए पूरा ओपन था कि आपको सब कुछ अकेले फेस करना है। इधर से हॉस्टल से कॉलेज जाना है, कॉलेज से वापस आना है, वो खुद मैनेज करना है। कॉलेज कहाँ से किया था आपने? कॉलेज मैंने इलाहाबाद से किया था, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। Okay.
एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज था नहीं कि मेरे को करना क्या है क्या नहीं। जैसा कि मैंने बताया मेरे को डॉक्टर बनना था, बट वो किसी मतलब लाइक क्या कर पाओगे इस सारी कैलकुलेशन में वो ये हुआ कि इंजीनियरिंग कर लो। और डॉक्टर आपको अपराजिता की स्टोरी बन के यस बनना यस था। यस एक्चुअली उसी से मोटिवेशन था कि हाँ नहीं मेरे को वो बन डॉक्टर सकती वो है बन तो मैं सकती है भी तो बन मैं भी सकती बन हूँ। सकती हूँ। हाँ उस टाइम पे भी मेरे को ये बोला गया कि आप मतलब डॉक्टर की काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसकी स्टडीज वगैरह काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो मेरे को फिर ये हुआ कि ठीक है अभी बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो जब कॉलेज गई ना तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था वो चीज, बिकॉज अब मेरे को मूवमेंट भी करना है, कॉलेज भी जाना है वहां पे मेरे अभी। और मेरी कभी ये चीज नहीं रही ना कि मैं मांग के कुछ लूं कि लाइक आप रैंप लगवाओ या ये करो वो करो। वो कभी मैं बहुत इंट्रोवर्ट उस टाइम पे कहेंगे ना कि ना बोल पाना या उस टाइप से थी। तो जब कॉलेज गई ना तो मतलब पहले तो मैं जाऊंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन जब कॉलेज को मैंने देखा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कितना बड़ा है, कैसे मूव करूंगी, मैं रोने लगी। पापा ने कहा कोई बात नहीं वापस चलो। तो मैंने कहा नहीं पापा 1 हफ्ते दीजिए, अगर नहीं कर पाई तो मैं वापस आ जाऊंगी। ओके। बट वो हफ्ता मेरे लिए इतना बेटर रहा ना, लाइक मेरे को अपने आप से एक सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ कर सकती हूँ, चीजें होंगी। मेरी क्लासेस सेकंड फ्लोर पे थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह, बट मैं जाती थी। मैं लाइक मैं नीज से वो मतलब किसी भी तरीके से मैनेज किया मैंने। अच्छा, you used to walk through your knees, not यस taking the wheelchair. नो एक्चुअली स्टेयर्स होते थे ना तो There was व्हीलचेयर no कैसे, lift, हाँ और elevators नहीं थे। हाँ Oh. एलिवेटर्स नहीं थे। और तब तक वही मैंने कहा ना मैं लोगों से डरती थी, लाइक बात करने से डरती थी, हेल्प मांगने से डरती थी। तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो व्हीलचेयर। हाँ लोग आते थे बट स्टिल वो मेरे लिए थोड़ा सा वैसा सा रहता था, नहीं नहीं करवाना, डर मतलब कैसे फेस करूंगी इस चीज को मैं, Okay, हाँ। कैसे करूंगी। बट हाँ वो चीजें जब लोग मेरे को देखते हैं ना कि ये कर रही है, एफर्ट कर रही है, ये सारी चीजें खुद करने का ट्राई करी, तो उसके बाद से लोग वो चीजें मेरे लिए थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते मेरे को देखा गया कि यार ये क्लास कर रही है, ये रुकेगी, ये नहीं जाने वाली है। देन मेरी क्लासेस नीचे शिफ्ट की गई, मोस्टली प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी थे, कुछ चीजें नहीं कर सकते थे, वो किसी के उसमें नहीं था, तो वहां मैं मैनेज करती थी, कुछ चीजें वो मैनेज करते थे। जीविता, यूजुअली हमने देखा है कि पीपल हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, दे लोगों के मन में उनके लिए एक अलग तरीके का मिसकंसेप्शन होता है। या दे थिंक मल्टीपल थिंग्स। तो आप आज उनके बारे में, उस मिसकंसेप्शन के बारे में कुछ बात करना चाहोगे जो आपने नोटिस करा थ्रू आउट योर जर्नी, कि दिस इज व्हाट पीपल थिंक कि ओ अगर इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है तो शायद ये नहीं कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगी, शी इज वेरी वीक, शी इज वेरी लो। और हाउ वुड यू वांट टू टॉक अबाउट इट? मतलब सबसे पहला तो लाइक अगर कोई अपने से डिफरेंट किसी को भी देखता है, अपने से डिफरेंट किसी को भी देखता है, मैं मोस्टली मैं डिसेबिलिटी की बात नहीं करूंगी, लाइक किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ जजमेंट उसके अंदर आ जाता है कि ये अगर थोड़ा सा इंसान मोटा है तो ये नहीं कर सकता, छोटा है तो ये नहीं कर सकता। सिमिलरली वो डिसेबल इंसान के साथ और सारी चीजें आ जाती हैं, वो उनको जज कर लेते हैं कि यार ये कैसे करेगा या फिर ये कैसे हो सकता है। और फर्स्ट थिंग बेचारा, लाइक वो बेचारा जो वर्ड होता है ना, ये बेचारी तो ये बेचारी तो वो, तो वो चीज ना काफी आपको डिमोटिवेट करती है लाइफ में कि यार। और कुछ लोग वो चीज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लाइक मेरा जो मैं वो चीज उस टाइम तक एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं बेचारी हूँ, है ना, कि मेरे लिए ये बना नहीं है, मेरे लिए ट्रैवलिंग नहीं बनी है, मेरे लिए कहीं बाहर निकलना नहीं बना है, मेरे लिए ठीक दिखना नहीं बना है, मतलब अच्छे से दिखना नहीं बना है। तो वो बहुत सारी चीजें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यही होता है कि आपको लोग बेचारा समझने लगते हैं। दूसरा, लोग डिसेबल लोग खुद को भी बेचारा समझने लगते हैं और प्रॉपर एक वो बना लेते हैं कि लोगों को मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करना है, लाइक मेरे से प्यार से ही बात करनी है, कोई मेरे को बुली नहीं कर सकता, कोई मेरे को प्यार से मतलब डांट नहीं सकता, कोई मेरे को ये नहीं कर सकता। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज, ऑब्वियसली आप जब थोड़े वो होते हो, बड़े होते हो, कॉलेज, लाइक आपने कॉलेज की बात की, ऑफिस की बात की, तो एक होता नहीं है कि आपको लोग लाइबिलिटी समझते हैं। ठीक है, आपको समझते हैं कि अब मैं इसे अगर कॉलेज में ला रहा हूँ या फिर इसे जॉब देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो ये लाइबिलिटी होगी हमारे लिए। हमें बहुत सारी चीजें इसके लिए करनी पड़ेगी, रिटर्न में हमें कम चीजें मिलेंगी।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार ट्राई तो कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, देखो, देन डिसाइड करो कि क्या चीज़ है। आपने जॉब की बात की, तो आप कॉलेज से जब ग्रेजुएट हुए तो यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि घर वापस जाना है या जॉब प्लेसमेंट लेना है, तो हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड यू गेट द जॉब एंड व्हाट हैज बीन द वर्क एक्सपीरियंस? एंड ऑफ कोर्स जब फर्स्ट टाइम जॉब गए, आपने अपना वर्क लाइफ में एंटर किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस, अब मैं ये बता रही हूँ कि कॉलेज टाइम मेरा ऐसा था ना, मेरी प्रॉपर ग्रोथ जो हुई ना कॉलेज में हुई, लाइक ओके। एक इंट्रोवर्ट और डरी हुई सी लड़की गई थी वहां पे, और एक लीडर बाहर आई थी वहां से कि वाओ, जो लोगों को मतलब कमांड कर सकती है, मैनेज कर सकती है, वहां से एक हाउ लीडर। डिड दैट हैपन? मतलब वहाँ वही मैं कह रही हूँ, मतलब सीरियसली कॉलेज सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, उन लोगों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। वहाँ के कॉलेज मतलब टीचर्स थे। पहले ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि मेरे को प्रूव करना पड़ा उस चीज के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो गया ना वो प्रूविंग में ही गया कि लाइक मार्क्स अच्छे आ गए, प्लस एक्स्ट्रा चीजों में भी पार्टिसिपेटेड थी, तो सारा इक्वली होता था। थकने के बाद मतलब ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, ये करने के बाद सब प्रॉपर 100% अटेंडेंस हो रही है। ये सब हो कैसे रहा था? मतलब अब वो हो हाउ वर रहा यू था एबल टू बस डू इट? बस हो रहा यही था। तो सबको जानना एक है एक कि था कि एक्चुअली मैं बताती हूँ, मतलब 10th में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। 12th में थोड़ा सा वो हुआ, बिकॉज जैसा मैंने बोला मैं कोचिंग नहीं गई, मैं लोगों से डर लगता था तो मैं कोचिंग हाँ। क्लासेस नहीं लिया, और प्लस मैंने मैथ्स ले लिया था। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, बायो लेना था, मैथ्स ले लिया था। तो लाइक वही था कि कॉलेज से एक डिफरेंट जीविता बाहर निकली, बट वो एक स्टैंडर्ड मेरे लिए सेट हो गया था कि अब मेरे को उससे नीचे नहीं जाना है। अब मैं नीचे मतलब लाइक जॉब में भी मेरे को एक अच्छी पोजीशन लेनी है, एक अच्छी जगह जाना है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है। अब तो मैंने कर लिया, ये चीज तो मैंने क्रॉस कर लिया। तो मैं वहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला। मम्मा घर वाले तो बिल्कुल भी और कहीं भेजने के लिए रेडी नहीं थे, तो सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा। दिल्ली में मैंने कोचिंग की, यहाँ पे मेडीजी से मैंने प्रिपरेशन की। हम्म। वहाँ पे भी अलग लेवल का फिर स्ट्रगल, अलग चीजें। देन वहाँ और एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रही थी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। मैं गई वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए थी, बट वही है, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ पोस्ट नहीं आई मेरे कैटेगरी की, एंड वहाँ पे मेरे को एक फेलियर मिला कि एक होता नहीं है कि उस 4 साल के बाद एक फिर से एक झटका मिला कि एक स्टेप पीछे चली गई, कि वो चीज नहीं हुई पूरी तब प्रॉपर। आपको ये लगा होगा दिस इज नॉट फॉर मी। यस, दिस इज नॉट फॉर मी। और वहाँ का स्ट्रगल लाइक वहां से आना जाना मेरे लिए, मेरी मोबिलिटी, मेरा मतलब बहुत डिफिकल्ट थी वहां पे चीजें। देन वहां पर भी सेकंड फ्लोर पे क्लासेस, वॉशरूम नहीं, तो लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। अब चढ़ने उतरने में मेरे को चोट लगी, मैं थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुई। पढ़ाई फिर से बैक उस पे गई। उसको गेन करने के लिए मेरे को 11-11 घंटे की क्लासेस करनी पड़ी। मतलब लिटरली मैंने 11 घंटे की क्लासेस की विदाउट यूजिंग वॉशरूम। माय गॉड, तो उस चीज को करने के लिए, बट ये था कांट कुछ तो बिलीव करना है, दिस। बट स्टिल वो हुआ नहीं। तो एक फेलियर वो मेरे लिए थोड़ा एक टफ मोमेंट था कि मैंने बहुत ट्राई किया बट चीजें हुई नहीं। हम्म। बट ऑलवेज अ प्लान बी। एंड व्हाट वाज द प्लान बी? साथ साथ गेट की भी प्रिपरेशन कर रही थी मैंने वहां पे 2 बार से उसको क्वालिफाई कर रही थी, बट मैं उसको अपना करियर ऑप्शन नहीं बनाना चाहती थी। मैं एमटेक नहीं करना चाहती थी, मैं आगे उसमें नहीं, मैं एक प्रॉपर जॉब में ही जाना चाहती थी। बट जब ये यहाँ से मेरे को हुआ तो फिर मेरे को लगा कि यहीं पे करना चाहिए, लाइक अब यहीं पे ट्राई करते हैं। मार्क्स ठीक था, अच्छे थे, तो गई मैं काफी आईटी से मेरे को ऑफर आए, ये वो And धीरे I धीरे। just want to talk about UPSC here. हम्म अभी results आए हैं हम्म and we saw कि lakhs and lakhs of students में से only thousand were able to make it to the list. बाकी लोगों का नहीं हुआ and they feel very shattered कि नहीं, सब किसी के attempts खत्म हो गए हैं, किसी को लग रहा है next time नहीं दे पाएंगे। तो everybody जिनका नहीं हुआ they are thinking of plan B. So you said you prepared for GATE.
So if you want to tell something about that also, because वहाँ पर भी of course there's a scope for students जिनका exam नहीं हुआ, who want to start something else or who want to see something as a plan B. So वो क्या exam है, आप if you want to elaborate on that. पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हो चुका है ऑब्वियसली, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है, उनको Right. भी एक बड़ा कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि उन्होंने एक चीज एक्सपीरियंस की है लाइफ में, ठीक है। वो पॉजिटिव गया नेगेटिव गया, बट एक एक्सपीरियंस मिला है उन्हें लाइफ में। जहां तक आप कह रहे हो गेट एक मतलब गेट एंड आईएएस एक टेक्निकल वो है, मतलब टेक्निकल वे में है, इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ पे सारे गेट में भी सारे ब्रांचेस के लिए आप वहाँ उनसे टॉप के आईआईटीज में एमटेक कर सकते हो, एंड देन आपको एक अच्छी और लाइक क्या कहते हैं, मतलब अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली आईआईटीज में पढ़ना एक मतलब लाइक एक अलग ही वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, बहुत एक अच्छा वो मिलता है। प्लस उससे काफी गेट से काफी पीएसयूज एफिलेटेड होते हैं, उनके Okay. इंटरव्यूज के कॉल आते हैं, आपके मार्क्स के उस पे बेसिस पे कॉल आती हैं, एंड वहां से आप ऑब्वियसली पीएसयूज में कर सकते हो जॉब। And that's from where you ended up to your PSU. यस। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, लाइक मैं गेट के थ्रू गई थी वहां पे, एंड एक पोस्ट थी, एंड मेरी कैटेगरी की एक पोस्ट थी, एंड 12 बच्चे थे। Oh, there also is a competition of और course. सारे मेल थे, मतलब मैं एक अकेली फीमेल कैंडिडेट Oh और my व्हील चेयर God. पे। Oh my God. देन स्टिल थोड़ा सा वहां पे भी एक डिफिकल्ट था, काफी चीजें हुई, एंड बाकी हाँ बस वो चीज अच्छी गई और इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ हुआ। So I just want to tell our viewers that Jivita currently is working in Central Electronics Limited, right? यस। It's a PSU of course, and she's doing great in her job. तो जब आपको वहाँ पर you got the job, how was the feeling कि 11 males में से I am the one who got selected, I'm the only female who got selected and only one seat थी. ऑब्वियसली सबने बहुत अच्छे से लिया, मम्मा पापा बहुत खुश थे, ऑब्वियसली इतनी उनकी भी मेहनत प्लस मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत, एक होता नहीं है कि Of course, your parents didn't give up. They and landed you at a good spot, right? यस यस यस, हाँ हुआ, वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे गई चीज, लोगों ने सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया, एंड अभी एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। And अगर आप वर्क स्पेस में if you have heard some of your friends also, किसी ने आपके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो कभी कि वर्क स्पेस में इस तरह से कैसे देखा जाता है डिसेबिलिटी को, किसी भी टाइप की, हाउ डू दे टेक इट? थोड़ा ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है कभी या मार्जिनलाइज लगता है कभी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग वाली जो फीलिंग, जो जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टार्टिंग वाली वो सबकी वो एक नॉर्मल फीलिंग है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे मतलब कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए आप कई सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वो तो लोग थोड़ा सा उस चीज को लाइक वही लाइबिलिटी फील करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसी चीजें होंगी वैसी होंगी। बट हाँ अगर आप लाइक मेरे ऑफिस में तो फुल सपोर्ट मिला, मेरे को एक अच्छी जगह पे पोस्ट किया गया, मेरे अकॉर्डिंग जगह पे पोस्ट किया गया, एंड फुल सपोर्ट मिला। बाकी मैंने और भी जगह गई हूँ तो सेम चीज वही कि इशू होगा, प्रॉब्लम होगी, कैसे मैनेज होगा कैसे नहीं होगा, तो वो सारी चीज तो रहती है। बट हाँ हमें हर जगह ऑब्वियसली प्रूव करने की जरूरत होती है, बहुत मुश्किल होता है बट स्टिल प्रूव करना पड़ता है। विदाउट आप प्रूफ किए आप कहीं पे भी किसी भी टाइप की चीजों में आप नहीं कर सकते। और वैसे वो सबके लिए, आपको हर जगह सबके लिए है, आपको हर स्ट्रगल स्टार्टिंग में मिलता ही है, आपको करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ। Jivita, you talked about the facilities which were there in your college also and offices maybe. So government is also taking many steps अच्छी facilities provide कराने के लिए. तो आपको क्या लगता है बट कहाँ कहाँ अभी कमी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि government should do something और इस चीज़ को लेके ताकि आपकी लाइफ या और भी इस तरह से लोगों की लाइफ जो है अच्छी हो जाए और नॉर्मल हो जाए, दे फील वेरी नॉर्मल, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लाइक जब मैं मेरी जो फेजेस थे वहां पे मेरे को वो चीज प्रॉपरली नहीं मिलती थी, टूटी फूटी मिलती थी जिसको मैं यूज नहीं कर And if you talk सके। about the sanitation, यस। because you said आप 11 hours तक आपने क्लास लिया and there was no washroom, हाँ था भी तो you were not able to use that. हाँ वो इस बिकॉज वो पब्लिक condition में वॉशरूम और लाइक Yeah. स्टेयर्स होते थे एंड वो गंदे होते थे, तो आप
कोई भी डिसेबल इंसान वो उसको यूज नहीं कर सकता। अगर वो थोड़ा बहुत चल सकता है तो ऑब्वियसली वो किसी भी तरीके से ट्राई करेगा, बट स्टिल अगर नहीं चल सकता है तो वो यूज नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब मेरे को पहले तो यही बोलना है कि हाँ, वॉशरूम्स होने चाहिए हर जगह। ठीक है, अभी बहुत सारी जगह अब हो रहे हैं, इवन रास्तों में भी उन्हें क्लीन भी रखा जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। मतलब मेरा ये गवर्नमेंट कर तो रही है, सब लोग कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा स्लो है। इसको थोड़ा सा मतलब तेज होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बाहर जाओ ना तो आपको हर एक एक डिसेबल इंसान, एक व्हीलचेयर पे बैठा इंसान कुछ भी कर सकता है, रोड क्रॉस कर सकता है, बस में चढ़ सकता है, अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस अकेला उस चीज को हैंडल कर सकता है। बट यहाँ पे अभी वो चीज नहीं है। आपके पास लाइक या तो कोई हो या तो पैसे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। आपको मतलब हो रहा है प्रोग्रेस, लेकिन थोड़ा स्लो है। मैंने तो काफी कुछ फेस किया, लाइक मेरे टाइम पे बहुत कम जगह रैम्प्स होते थे, मेरे को स्टेयर्स ही यूज मतलब मैं चढ़ती थी, कोई होता था व्हीलचेयर उठाता था, रखता था। तो वो सारी चीजें प्लस ट्रांसपोर्ट का, घर जाना है कैसे जाऊं, किसी के साथ जाना है यार खैर मैंने उन सारी चीजों को मैनेज किया। औरों को भी करना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा भी ये प्रोग्रेस हो रहा है, बट थोड़ा सा तेज चाहिए। आई विश एंड आई होप बहुत जल्दी चीज़ें और चेंज हों और अच्छे स्पीड से चेंज हों, जैसे आपने बोला। टॉकिंग अबाउट योर मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, हाउ यू यूज टू व्हेन यू केम टू दिल्ली, यहाँ पर आके आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, आप कैसे ट्रैवल करते थे और हाउ कन्वीनियंट वाज इट फॉर यू? लाइक पहले तो थोड़ी डिफिकल्टीज तो आई थी कि कैसे करना है, बिकॉज अकेले अब मैं अपने लिए मेरा यही है कि मम्मा पापा को यहाँ पे हमेशा रखना, मतलब लाइक वो मेरे सपोर्ट में है, तो फिर वो और चीजें कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मेरे को खुद, अगर मेरा डिसीजन है कि मेरे को बाहर रह के चीजें करनी है तो मेरे को अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ठीक है, उस टाइम पे कुछ लाइक ऑटो हायर किया, कैब हायर किए, मेरी ज्यादा से ज्यादा सैलरी ट्रांसपोर्ट में ही जा रही होती थी, कैसे मैनेज करना है, क्या है क्या नहीं है, वो जा रही होती थी। घर जाने के लिए कुछ मैंने अपने चीजों पे वर्क किया कि ठीक है, मैं अगर नीज से चलती हूँ तो बाहर भी किसी तरीके से उसको हैंडल करूंगी। ट्रेन में ट्रैवल करना है तो बहुत सारे पैड्स वगैरह पैर में लगा करके देन बोगी तक, मतलब लाइक वहां तक तो व्हीलचेयर जा रही है ट्रेन तक, लेकिन ट्रेन के अंदर तो नहीं जा सकती ना व्हीलचेयर, देन वहां से मेरे को ट्रैवल करना। देन सिमिलरली अब बस यूज कर रही हूँ जो भी है। अब तो खैर फ्लाइट वगैरह अब मैं मतलब ऑब्वियसली फ्लाइट वगैरह में वो इशू नहीं आता है, बट हाँ ट्रेन बस इन सब में तो इश्यूज आते ही यू हैं अभी। वंस टोल्ड मी, जब हम पहले बात कर रहे थे, दैट आप स्कूटी भी आपने चलाया है। ये हाँ, स्कूटी भी मैंने चलाया हुआ है, वो लाइक साइड में व्हील्स लग जाती हैं, तो वो चलाया हुआ है वंस। मतलब मैंने जब वो स्कूटी ली थी तो किसी ने मेरे से बोला था कि आराम से चलाना, लोगों को साइड वाली व्हील्स दिखती नहीं है, आदत नहीं होती है देखने की। तो हाँ। मैंने कहा मतलब आदत नहीं होती है क्या, कि मतलब अगर सामने स्कूटी दिख रही है तो स्कूटी ही सोचेंगे ही कि दो ही पहिए हैं, चार पहिए हो ही नहीं सकते हैं। तो मैंने वो चीज तो ऐसे ही ले ली, बट उसका खामियाजा मेरे को थोड़े दिन बाद मिला। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। लाइक साइड से किसी ने टक्कर लगा दी, वही देखा नहीं उन्होंने और वो कर दिया, तो एक वो भी फेज था मेरा एक। But talking about breaking the glass ceiling, how did Jivita broke those glass ceilings? जो you said आप अपने college में you came out as a leader. So what all activities you did? लाइक अगर कॉलेज में मैं कहूँ तो क्या था कि मैं एक वहाँ पे एक सोसाइटीज होती थी, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटीज, मतलब अब एक होता नहीं है कि आप कम्युनिटी बनाते हो कुछ टेक्निकल कम्युनिटी, तो उस चीज में मैं वहाँ पे हुई, उसकी मैं एक उस पहले तो कुछ मेरे को लिया ही नहीं जाता, देन मैं वहाँ की प्रेसिडेंट, मतलब वहां से जब निकली तो मैं वहाँ की प्रेसिडेंट बन के निकली थी। तो वो था, वो वहां से वो चीजें मेरे को मिली। देन आफ्टर जॉब, मतलब एक मिलने के बाद देन आपने जैसा बोला, फिर मैंने अपनी चीजों पे थोड़ा फोकस अच्छा। किया, तो तब मैंने वो थोड़ा सा वो पेजेंट वगैरह का वो किया। मैंने एक टाइटल, मतलब मिस इंस्पिरेशनल दीवा 2018 मैंने जीता था। Very देन देन nice. उसके बाद से फिर मैं और भी चीजों में, मतलब उसमें भी थोड़ा सा इधर उधर किया, बट ठीक है। और उसके मैं पेंटिंग करती हूँ,
ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। Yeah, I'll come to that also. करते हैं। And if we talk about your traveling, so we'll show some pictures also. These are such beautiful pictures. तो आप how do you plan your travels? मतलब वहाँ पर of course बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है आपको, तो स्पेशली ज्यादा देखना पड़ता है अपनी सेफ्टी, फिर what are you going to pack with you, और आपको कैसे ट्रैवल करना है, are you traveling alone, are you traveling with your friends, तो कैसे था? बिकॉज इफ पीपल लाइक यू और जिनके मन में अभी भी डर है, जिनका मन कर रहा है ट्रैवल करने का बट वो नहीं कर पाते, वो ये सोचते हैं दिस इज नॉट फॉर मी, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि हाउ डिड यू प्लान इट इफ दे वांट टू डू? पहले तो खुद को जज करना होता है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितनी चीजें आप अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो, एडजस्ट करने के लिए कितना रेडी हो। देन वो सारी चीजें आपको पहले तो अपने आप को देखना होता है कि, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ चीजें, बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को हाइजीन से मतलब हाइजीनिक होते हैं, कुछ लोग को ऐसे वेदर में नहीं रहना होता है, कुछ लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो आप अपने आप को पहले जज करो, देन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर दो। मैंने भी यही किया, मैंने खुद को जज किया कहाँ पे मैं जा सकती हूँ, कहाँ नहीं जा सकती हूँ। देन मैंने ऐसे होटल्स फाइंड करने स्टार्ट किए जहाँ पे मैं इजीली जा सकती हूँ, जहाँ पे या तो इजीली नहीं जा सकते, लोग सपोर्टिव हो, आप कॉल करके पूछ लो कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, और बताने में मेरे को कभी भी कोई इशू नहीं होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप बताओ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि बताओ, आप शेयर करो लोगों के साथ। तो आप बताओ कि आपके साथ प्रॉब्लम है और क्या आप वहाँ पे मैनेजेबल है वो चीज की नहीं है। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हाँ हाँ सब कुछ सही है आ जाओ, लेकिन वहां पे जाके इश्यूज मिलते हैं। बट आप उसको कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से उसको, एक कहते हैं ना कि मैनेज कर सकते हो, तो वो देखना होता है। देन क्योंकि मेरे अंदर ऐसा है कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर छोटी सी ये प्रॉब्लम है, चलो इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो वो चीज है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा वो ही है कि थोड़ा आई वुड से जिंदा दिल रहना बहुत जरूरी है। एंड यू आर एन एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई वी चोज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, कि आपके जैसा जिंदा दिल बनना जरूरी है, तभी सारी चीजें रास्ते खुलते चले जाएंगे ऑफ कोर्स। बट फिर कुछ चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को कंसर्न करती है, विच इज सेफ्टी ऑफ अ गर्ल स्पेशली, एंड एज यू सेड बचपन में भी बहुत बोलते थे बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, तो आप जब यहाँ पर आए वो सेफ्टी कंसर्न्स क्या थे, और आपने कुछ इंसिडेंट्स ऐसा फेस किए? एक नॉर्मल लड़की भी करती ही है वो सारी चीजें, तो आपको भी एक नॉर्मल लड़की की तरह आपने वो इंसिडेंट्स फेस किए हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल? यस, मैंने फेस किया है, और मतलब लाइक वो एक मेरे लिए भी थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, एक शॉकिंग चीज रहती थी। पहले तो मेरे को लगता था कि यार ठीक है, मेरे साथ क्यों, एक होता नहीं है कि मेरे साथ तो नहीं होगा, ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों होगी। बट ऑब्वियसली जो बुरा है वो सबके कुछ लिए भी बुरा नहीं, है। वो सबके लिए बुरा है। ठीक है, अगर किसी को कुछ चीजें मतलब लाइक किसी का दिमाग खराब है, तो वो नहीं देखता कि कौन कैसा है, इसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे को फेस करना पड़ा, यहाँ पर भी फेस करना पड़ा, काफी चीजों में फेस करना पड़ा। बट स्टिल वही है, और पेरेंट्स का ऑब्वियसली कंसर्न रहता है कि कैसे चीजें होंगी, कैसे मैनेजेबल। बट हाँ वही है कि मेरा फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है, लोगों का तो मेरी लाइफ में क्या है ना, हमेशा वो बैलेंस बना रहता है। बुरे लोग अगर आते हैं तो उससे ज्यादा अच्छे लोग आ जाते हैं। अदर देन दिस, जब आप आपके सिबलिंग्स, यू टॉक ना कि नॉर्मली आपको घर पे उनसे लड़ाई भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, तो मुझे लगता है घर का माहौल भी इस तरीके का बनाना बहुत जरूरी है कि आपके पेरेंट्स ने, यू सेड यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल पर्सन, यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल पर्सन, तो दे आई थिंक मेड वेरी द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस। कैसा था घर पे? घर पे बिल्कुल भी नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल इन्वायरमेंट था। लाइक मैं इक्वली ट्रीट हूँ, मैं भी पढ़ाई के लिए मार खाई हुई हूँ, मैं भी लाइक ये क्यों नहीं किया। और मम्मा वाज लाइक कि तुम्हें सब काम आना चाहिए,
ठीक है? कभी भी तुम्हें ये ना हो कि तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं आता है या तुम ये नहीं कर सकते हो। उन्होंने मेरे को हर चीज़ सिखाया, लाइक कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, सब कुछ करो, कैसे अपने आप को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करो, कैसे रिलेटिव से बात करो, कैसे बाहर लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कौन कैसा होता है, सब कुछ। मतलब लाइक लोग आते थे घर पे तो बोलते भी थे कि बच्चे से काम, ये इससे क्यों काम करा रहे हो? ये क्या, ये मतलब कोई आया, मम्मा ने कह दिया चाय बना दो, हाँ। ठीक है? अरे इससे क्यों काम करा रहे हो? ये इसको बैठने दो ना, ये नहीं, नहीं बनाएगी ये, क्या इश्यू है? कर लेगी ये। तो मम्मा ने हर वो एक चीज़ मेरे को करने दी, कराया। मतलब ब्रदर सिस्टर से भी लड़ाई-वड़ाई जो भी होती थी, सब नॉर्मल एक तरीके से, कि कभी भी मेरे को अलग फ़ील होने ही नहीं दिया। सिमिलरली मेरे सिबलिंग्स भी वैसे ही, बिल्कुल भी फ़ील नहीं कराया। अरे नहीं, नहीं, मतलब हाँ, एक चीज़ में वो लोग कहते हैं, इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अब हमें उसके पीछे-पीछे चलना होगा, नहीं तो हमारी बड़ी पिटाई होगी। तो So what are they doing now? नहीं, भाई तो अभी डॉक्टर है, Okay. पीडिया में है वो डॉक्टर, एंड बहन ने एलएलबी किया है, बीबीएलएलबी, तो शी इज अ ओके, लॉयर। ग्रेट। आप अपने आप को आज से 5 साल के बाद में कहाँ देखते हो, प्रोफेशनली एंड पर्सनली? वेयर डू यू सी, व्हाट आर योर प्लान्स? मतलब ऐसे तो मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं ना, लाइक बहुत पहले बहुत प्लान किया, सब कुछ किया, वो चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा आगे का तो नहीं सोचती हूँ, लाइक मतलब अगर मेरे को आप देखो तो मैं गोइंग विद द फ्लो वाली चीज़ है, बट हाँ, उतना एफर्ट ज़रूर रहता है कि जो भी है उसको बेस्ट करना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल्ली एन्जॉयिंग माय फ्रीडम या, व्हिच आई हैव बिल्ट फॉर माय सेल्फ। ग्रेट, ग्रेट। आई विश यू डू दैट। एंड टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग अगेन, आप कहाँ-कहाँ पर अभी ट्रैवल किया है आपने, एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन व्हिच इज देयर इन योर माइंड कि यहाँ पे तो ज़रूर जाना है? मैंने ट्रैवल मोस्टली जैसे लाइक कश्मीर किया कश्मीर किया हुआ है, एंड मैंने साउथ में केरला किया हुआ है, अंडमान किया हुआ है, इधर हिमाचल में कुछ जगह है वहाँ पे किया हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं कि ये करना है। लाइक मेरे को ना थोड़ा-सा एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी वो है, मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं कर सकती You है। did paragliding हाँ, या also, scuba एग्ज़ैक्टली। diving. What मैंने else? Please tell us. मतलब मैंने अभी तो मेरे को बोलना पता नहीं, राफ्टिंग के अलाउ नहीं है करना, लाइक बट मैंने राफ्टिंग किया हुआ है। काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके किया हुआ है कि नहीं भैया बस मेरे को बस बैठा दो, करा दो किसी तरीके से ये वो। तो राफ्टिंग भी किया हुआ है मैंने। मैंने बीर से मेरे को मैं गई थी भीमताल, वहाँ पे मेरे को पैराग्लाइडिंग के लिए इन्होंने मना किया हाँ। कि आप नहीं कर सकते हो बिकॉज़ वो बहुत भागना पड़ता है। मैंने बहुत सर्च किया कि इंडिया में कहाँ हो सकता है, बाहर तो फिर छोड़ ही दो, कहाँ हो। मैंने बीर में कई फोन किए कि भैया ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने बीर से पैराग्लाइडिंग की, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो वहां पे भी भैया वाज लाइक, दीदी डर तो नहीं लग रहा है? हम कहे भैया आपको लग रहा है ना। देन फिर मैंने अंडमान में स्कूबा भी किया हुआ है। तो अभी और भी चीजें हैं लिस्ट में, देखते हैं आगे। तो अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना या बाकी है, अभी तो राइट? बहुत कुछ है। और इसके अलावा वीव हर्ड एंड वीव सीन ऑल्सो, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा शेल में रख लेते हैं कि वो और कोई एक्टिविटी करते ही नहीं है, नाइदर द फिजिकल एक्टिविटी, तो फिटनेस पे भी अपना ध्यान नहीं देते हैं। एंड सिंस यू यू आर सो फिट एंड यू मेंटेन्ड योरसेल्फ, आई वुड से, तो हाउ डू यू डू दैट, और क्या कहना चाहोगे फॉर द फिटनेस? तो मतलब उसके लिए भी वही मैंने बोला ना कि हर एक चीज का ऑप्शन होता है, आपको अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत होती है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना खाओ और अच्छा मतलब एक एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, आप उतना आपके मतलब डेली रूटीन में वो एक्टिविटीज नहीं हो रही है। तो आपको थोड़ा सा खुद को हमेशा हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या फिर कुछ लोगों को और प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथ की प्रॉब्लम, तो आप वो, बट कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, उतना ही करो बट रेगुलर करो। रेगुलर करो। और एक अच्छी डाइट लो, एक अच्छा खाना खाओ, ऑब्वियसली। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है,
प्लस मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत कभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हमने स्टार्ट ही कॉन्वर्जेशन इसलिए किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, ये अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं कि कोई एग्जाम का एक स्टेज क्लियर नहीं हो रहा है या एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा। अभी भी हर्ड नीट का एग्जाम हुआ था एंड इट वाज पीपल आर सेइंग कि थोड़ा टफ था, तो वी हर्ड कुछ सुसाइड्स भी हुए हैं इतनी यंग एज में। दे टुक दैट ऑन देयर माइंड, तो उससे निकलना बहुत ज़रूरी है एंड that is why you are here, you are an inspiration, you live your life so nicely. What would you like to tell to those students, in even to everyone including the disabled, या कुछ भी बोलो, नॉर्मल बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, सब लोगों के लिए? अगर आपको मेरी एक स्टोरी आपने समराइज की होगी तो आपको लगा होगा कि कुछ भी चीजें मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। लाइक हर एक स्टेज पे जो मैं Right. सोच रही थी वो नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली आपका एक प्लान भी होना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या है, बट कोई जरूरी नहीं कि वो प्लान बी भी सक्सेसफुल हो। तो एक होप जरूर रहनी चाहिए कि ऊपर वाले का भी एक प्लान बी होता है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, आप सोचो अगर आज आपने एक जगह पे गिव अप कर दिया तो आपको तो पता ही नहीं कि आगे चीजें हो सकती थी, हो सकता हो बेटर हो सकती थी, हो सकता हो और भी जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा बेटर हो सकती हैं। और अपनी चीजें करते अपना 100% हमेशा देना चाहिए। आप अगर नॉलेज गेन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी चीज में एफर्ट कर रहे हो, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर काम आएगा। आपके काम नहीं आएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा, लेकिन काम जरूर आएगा। और होप मतलब लाइक जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो अगर आपके अंदर होप है कि चीजें बेटर हो जाएगी, नहीं मैं कर सकता हूँ, राइट राइट, मैं कर सकता हूँ, इनसाइड यू। हाँ कि ये चीजें मैं बेटर कर सकता हूँ और अगर मैं करूंगा तो होगी, वो होप कभी नहीं जानी चाहिए। और कभी जीविता को ऐसा लगा था कि आई शुड गिव अप? या मेनी टाइम्स, ऐसा बहुत टाइम्स हुआ कि बट वही आपको लगा होगा, हर एक को लगता है अपनी लाइफ में, लेकिन मेन बात ये है कि आप उसको आपने हैंडल कैसे किया? क्या आपने सच में गिव अप कर दिया या यू रोज एंड यू फॉट फॉर इट? ऑब्वियसली मतलब लाइक मैंने जो बोला कि हाँ ठीक है, एक चाइल्डहुड का भी फेस था, उसके आगे भी फिर मेरे को चीजें फेस करनी पड़ी। देन फिर आए एक बार हम लोग, तो शायद मैं उस टाइम पे उस फेज में थी कि मैं यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूंगी, क्या ना पढ़ाई में चीजें हो पा रही हैं, आगे का फ्यूचर नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं ऑर्थोपेडिक सेक्शन के बाहर बैठी थी, थोड़ा सा मैंने अपने अराउंड देखा, ठीक है यार मैं बहुत अच्छे स्टेज में हूँ यहाँ पे, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, लोग फेस कर रहे हैं उसको, उनके अंदर इच्छा है अपना लाइफ बढ़ाने की, अपनी लाइफ को जीने की, ये लाइफ मिली है उसको किसी भी तरीके से जिया जाए। मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ इसको। राइट राइट। अब मेरे को तो बहुत सारी मेरे साथ एक बेनिफिट्स भी, मतलब भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया भी है कि ये है तुम्हारे पास, इतने अच्छे मम्मी पापा हैं, सब कुछ है, सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ है, फिर मैं क्यों गिव अप करूं? मेरे को तो एक मेरे पास तो प्लस है, तो मैं कर सकती हूँ वहां पे। तो हाँ वो भी एक फेज था जब मैं गिव अप कर रही थी और एक मेरे अंदर एक बूस्ट आया। देन एक बार और मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ के टाइम पे भी जब चीजें नहीं हो रही थी तब भी मेरे को एक आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब वो टाइम तो ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि कैसे चीजें होंगी, क्या है क्या नहीं है। एंड जो आप कह रहे हो ना कि एकदम गिव अप करने वाली पोजीशन पे, हाँ। कि अब नहीं हो सकता है मेरे से, मैं उसी जोन में थी, क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो। एक मतलब अचानक से फोन में मम्मी की कॉल, मम्मी नाम से कॉल आई, एंड वो मोमेंट ऐसा था ना कि नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकती। ये दोनों मतलब मम्मा पापा ने मेरे को अभी यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है। राइट राइट। ये लाइफ मतलब मेरे को देने के लिए ना बहुत कुछ किया है। ज्यादा से ज्यादा मैं उस फेलियर को हैंडल करके घर बैठ जाऊंगी, लेकिन गिव अप Don't मतलब let it वैसे नहीं come करना here. है। Right, हाँ, right. So you took inspiration from those who are suffering and who are यस, suffering more than what the problems you have, and you took inspiration from your family who have supported you यस, throughout, right? So of course it is for everyone, for each one of us. हम लोग कभी low feel कर रहे हैं तो of course we know हमको हमारा inspiration कहाँ से लेना है, and you know आपको आपका inspiration कहाँ से लेना है. So जीविता, अभी what the doctors are saying about this condition? अभी तो ऐसा कुछ मतलब है नहीं, कोई स्कोप नहीं है, मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको कि ऐसे तो कोई इलाज नहीं है।
अभी, बट अभी हमने ट्राई नहीं किया है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं ट्राई किया है, तो मे बी इन फ्यूचर मैं वहाँ के लिए ट्राई करूँ, बिकॉज बहुत सारी मतलब डॉक्टर्स किसी कुछ हम सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ चीज़ें, और ये मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, बाई बर्थ इशू है। तो कुछ चीजें उस टाइम पे हो सकती थी, तो वो अब है जो उस टाइम पे की जाती, बट उस टाइम पे तो ऑब्वियसली नहीं थी ना, तो वो चीजें नहीं हो सकती। थोड़ा डिफिकल्ट है इससे रिकवर होना, बट स्टिल ठीक है। So at the end, how would you like to conclude? आप सबको क्या कहना चाहोगे? आप अपने viewers को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, एक चीज मैंने बोली है कि होप नहीं खोनी चाहिए। होप सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, एंड आपकी फैमिली सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुश रहो लाइफ में, लाइक आपका फोकस होना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत रिच हैं फिर भी खुश नहीं है, बहुत पावरफुल हैं फिर भी खुश नहीं है। आपका मेन फोकस है कि आप अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे बना सकते हो। आप हैप्पी रहोगे तो आपके सराउंडिंग मतलब लोग भी खुश रहेंगे। मेरे को बहुत टाइम लगा ये सोचने में कि लोग मेरे को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लाइक मेरे लेग्स को पहले देख रहे हैं, देन मेरे फेस को देख रहे हैं। अब मैं, क्योंकि मैं आई कांटेक्ट करती हूँ, मैं उतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं लोगों मतलब सामने रहूं, तो अब मेरे को लगता है हाँ ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक पहले लोग मेरे फेस को ऑब्जर्व करते हैं, देन मेरे कमियों तक जाते हैं, वो भी जब मैं फोकस कर रही होती हूँ तो आप जहाँ पे फोकस करोगे वहां पे लोग फोकस करेंगे। आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे, एक पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, तो वो वहां पे लोग भी आपके साथ रहेंगे। Well said, Jivita. You're such a positive soul, I would say. So after this conversation, आप सबको पता चल ही गया होगा कि जीविता, she is such a lively person. She is such a happy person. अपनी life में she has never give up. तो हम उनसे यही सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जस्ट डोंट लूज होप, जैसा कि उन्होंने बोला। शी इज वर्किंग, शी इज ट्रैवलिंग, शी इज मॉडलिंग ऑल्सो, शी इज डूइंग दैट, समटाइम्स शी डज, एंड शी इज गोइंग आउट विद अ फ्रेंड, सो शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो हमें इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एंड यूपीएससी, इफ आई टॉक अबाउट द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज ऑफ कोर्स you see the podcast, you see the preparation strategy here. तो यूपीएससी इज ऑल्सो नॉट एन एंड ऑफ द लाइफ। अगर होता है तो ऑफ कोर्स इट इज योर ड्रीम, बट अगर नहीं होता तो देर इज अ प्लान बी, एंड गॉड ऑल्सो हैज प्लान बी, एज you rightly said. So Jivita, thank you for coming, and thank you for having this conversation today. We are very glad to have you, and yes, we'll meet again. थैंक यू पूजा, एंड लाइक आपने इस चीज को मतलब एक इतनी इम्पोर्टेंस दी मेरी जर्नी को, मेरे को इनवाइट किया, मेरे को बोलने का मौका दिया, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए मैं भी मतलब लाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करके। अपनी Same चीजें here, same here. अपनी चीजें बोल करके, लाइक वो ये होता है ना कि कुछ चीजें अपने अंदर रखी हुई है। मैं एक्चुअली लोग मेरे से बात कर, बहुत लोग पूछते हैं करते हैं, तो मैं बात करती हूँ, बट ऐसे प्लेटफॉर्म पे ठीक है, ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि We are अपनी glad स्टोरी we were बता। able to give this experience. यस, थैंक So यू। thank you so much.